This is the petition by the landlord. क्या हुआ, नोटिस जारी नहीं हुआ अभी तक? नोटिस सर्व हो गया 2018 में. क्या पॉइंट है? Point is that she is the lady and she filed application under section 23A for eviction. ए या बी? 26AB. हाँ, दुकान है. Dukan, show is a shop. Now the proceeding was continued and the evidence was led. Thereafter, the respondent filed an application under order 7/11 for directing the plaintiff or directing the applicant herein to file the documents of her title. On that application, that application was allowed and my application for eviction was dismissed. अच्छा, That is all. तो इनका जवाब दवा मेरा नहीं आया था. जवाब दवा आ गया. He has admitted the tenancy. अच्छा, Hello. बताइए, ऑर्डर बताइए. A6 page 16-17. In this case, what had happened? This original tenant, original landlord, my mother died. She executed a will in favor of the grandson. वो कहीं एप्लीकेशन निकाली, सुनिए. Application by annexure A1. एप्लीकेशन किसने पेश की थी? Application filed by the Banarsi Devi. बनारसी देवी filed application. Yes. तो बनारसी देवी filed application being widow. Widow. हाँ, and relationship of landlord and tenant was Admitted. in between बनारसी देवी and नारायण दास. Yes. और ये कौन है? जय कुमार जैन. The son and daughter. Son and daughter. Daughter. They were substituted. नहीं, they were substituted. Now whether cause survives to them. Yes, because the need was of the grandson. And the grandson had also sustained injuries and his leg was amputated, so he also belonged to the specified category. Grandson कहाँ है? Grandson, and in the impugned order we filed application for impleading the grandson as party. तो grandson जो है in the lifetime of his father, grandson means उसका जय कुमार का बेटा होगा. बिल उन्हें बिल एग्जीक्यूट की है अपने फेवर, ग्रैंडसन के फेवर में. ग्रैंडसन बनारसी देवी ने इस सूट लैंड के संबंध में बिल एग्जीक्यूट की इन फेवर ऑफ द ग्रैंडसन. तो फिर वो उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया? उसके लिए भी एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन खारिज कर दी हमारी इसी इम्पुग्न ऑर्डर से. कब खारिज की? इसी इम्पुग्न ऑर्डर से. नहीं, तो ये जय कुमार जैन और जयश्री जैन कब आ गए रिकॉर्ड पर? उसके पहले आ गए थे. तो फिर हमने जब बिल का पता लगा तो बिल के आधार पर हमने एप्लीकेशन फाइल की फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रैंडसन. वो एप्लीकेशन भी खारिज कर इसी इम्पुग्न ऑर्डर में. बिल कहाँ है? बिल that is not filed with the. इतने दिनों में तो सबके 4-6 दावे डिक्री हो जाते. आप लगे हुए यही 23-1 में 2009 का मुकदमा है. गवाही वगैरह सब हो चुकी थी. उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइल कर दी हमने. इसलिए फ्लैग किया हुआ है पैरा 2 और 3 देखें, उसमें एडमिट किए टेनेंसी. और उसमें 7/11 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट पेश करने का तो डायरेक्शन दे नहीं सकते. इवन हम इम्प्लीड नहीं भी करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच द कॉज सर्वाइव्स. सो नीड वाज द ग्रैंडसन. लेकिन लैंडलॉर्ड ही एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी सब नीड सक्सेस करेगी. यस, दैट इज इट. डिवीजन जजमेंट एक लाइन पढ़ के बता दीजिए. वॉल्यूम 1 MPLA page 636. Reference was made by the single bench. The reference was that one. This reference has been मतलब लैंडलॉर्ड मुकदमा लगाएगा, लैंडलॉर्ड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वो जो है स्पेशल कैटेगरी का लैंडलॉर्ड रिकॉर्ड पर नहीं होगा तो भी नीड रहेगी. Yes, that is the. कोई भी जजमेंट नहीं है अभी तक. पढ़ लीजिए, बता. I just reading the reference and the answer is there. This reference has been received by us by the. अरे आंसर ही दे दो ना सीधे. Para 19. हाँ. Para 19. In view of this, behold that the application for eviction filed by the landlord of the specified category for the bona fide residential need of himself or his family member will not abate on his death during the pendency of application for eviction before the court of rent controlling authority, and his legal representatives shall have right to pursue the proceeding for eviction under chapter 3A of the act. काम मना कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव राइट. वो आए तो रिकॉर्ड पर आ चुकी है ना सब. वो आना. अब ये तो अरे सुन तो लीजिए. ये जो आया, ये जो आंसर हुआ था सेक्शन 12 पर हुआ था. ये बात कर रहे हैं आप सेक्शन 23 की. नहीं, 23 पे ही हुआ है. ये 23 पे ही हुआ है.
ये स्पेसिफाइड कैटेगरी लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड पर तो आए कौन से ना, ये लीगल नहीं, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं होंगे भाई। जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड था उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कम से कम लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल कैटेगरी के तो हो एक आध। वो उसकी आवश्यकता नहीं स्पेशल कैटेगरी के लिए, वो आवश्यकता नहीं, वही तो आंसर किया है। फिल्म निकालिए रहे कौन सा है 2011 वॉल्यूम 1 MPL पेज 366। आवश्यकता नहीं है, ये शब्द नहीं लिखा उसमें, लेकिन आप उसको प्रिज्यूम कर रहे हो। वो दैट वाज द स्पेसिफिक रेफरेंस। जो आदमी घर पे सो रहा है उसको जो है कोर्ट उसके फेवर में टिप्पणी थोड़ी देगी। In what had happened if the need of the landlord himself on expiring him the need and the proceeding would await, but the need of any of the family member would survive even after the death of the specified category person. The two categories. Landlord says I have the requirement, then that will await. But so far as the other family members are concerned, the proceeding would continue even after death of the landlord. कौन सा मिला? सर लीलावती बाई वर्सेस राधा किशन। ऑर्डर इनपुट ऑर्डर बताइए पढ़िए। मतलब इनपुट आना है 6 मिनट at page 16 the relevant paragraph would be at page 17 paragraph last paragraph। उपरोक्त विवरण के आधार पर मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों वादी प्रतिवादी एवं प्रस्तुत आवेदन एवं जवाब के अवलोकन उपरांत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 30/6/2016 आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। अनावेदक प्रतिवादी मृत आवेदिका वादनी का हनुमान का निश्चित दुकान का पूर्व से किराएदार है। प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन पत्र में व्यक्त किया गया कि उक्त धारा 13 का मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत चलायमान इसलिए नहीं कि मृत वादनी या उसके वारिसन वर्तमान आवेदक वादी के द्वारा धारा 23 का के प्रावधानों की परिपूर्ति परिप्रेक्ष्य में भूमि स्वामी से संबंधित राय प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए प्रकरण आवेदन के परिप्रेक्ष्य में चलायमान न होने का निरस्त किया जाता। मृत आवेदिका वादनी के पुत्र जय कुमार जैन के द्वारा तो आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं धारा 23 का के प्रावधानों के तहत दस्तावेज राय सबने प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया यह कि प्रतिवादी आवेदक द्वारा कई अवसर लेने के पश्चात न्यायालय में किराए संबंधी बातें उठाकर विलंब कायद किया जाता रहा है। किराया विवाद समाधान हो जाने के पश्चात न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से आवेदन व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए एवं इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्क आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर समझ किए गए। इसका जवाब कहाँ है उसका रिलेशनशिप वाला? मतलब वो हमने फ्लैग किया सर, ऊपर वो पिंक फ्लैग लगा हुआ है रिकॉर्ड में। कौन सा पैरा है? ये पैरा 2 ही है। पैरा 2 यह कि आवेदन पत्र की 2 और 3 में वर्णित। सुनिए रिमांड कर देते हैं, नहीं जाके देखिए। दिस रिवीजन हैज बीन प्रेफर्ड by the applicants by the legal representatives लिख देना। this revision has been preferred by the legal representatives। My lord, they were substituted। हाँ तो मतलब ये दोनों तो स्पेशल कैटेगरी के जरूरत नहीं ना, हम इतना ही लिख रहे हैं। This revision has been preferred by the applicants या legal representative the legal representatives of the original applicant public landlady श्रीमती बनारसी देवी challenging the order dated कौन सा है? 12/10/2017 passed by current Controlling Authority Patni in case number 01/A-90 within bracket 7/2009-10 whereby on the respondent public non-applicant apostrophe S application under order 7 rule 11 CPC learned RCA has dismissed the application for eviction filed under section 23 capital A within bracket small b
of the MP Accommodation Control Act from 1961 within bracket insert the act. आई एम जस्ट इंटरप्टिंग माय लॉर्ड, इन दिस इम्प्रूव ऑर्डर में हमने 617 का आवेदन लगाया था कि हमारा जो अनुपम जैन है जिसके लिए हमने नीट की थी उसके लिए 617 का आवेदन लगाया था, वो भी खारिज कर दिया था, तो वो दैट विल बी आल्सो। तो एप्लीकेशन डिसाइड की थी 6